نیوز میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجر اور میں ہوں سنیا ملک. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھ لی. بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے. جڑواں شہروں میں مانسون کے اسپیل نے تباہی مچا دی ہے. 240 ملی میٹر سے زائد بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر کے رکھ دیا. راولپنڈی میں دریائے سوا میں طغیانی سے قریبی آبادیاں زیر آب آ گئی ہیں. دھدوچا ڈیم کی طرف آنے والا نالا بھی بھر گیا ہے. چکری روڈ پر سیلاب میں پھنسے خاندان کو پاک فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر لیا. مکانات ڈوب گئے، سڑکیں بیٹھ گئی، گاڑیاں بہہ گئی. جڑواں شہروں میں مانسون کا تباہ کن اسپیل. 240 ملی میٹر بارشوں نے راولپنڈی اور اسلام آباد کا حلیہ بگاڑ دیا. نالا لئی بفر گیا. اطراف کے علاقے خالی کرا لیے گئے. سائرن بجا کر شہریوں کو خطرے سے آگاہ کیا گیا. مساجد سے ہنگامی اعلانات ہوئے. دریائے سوا میں طغیانی سے قریبی آبادیاں زیر آب آ گئی. دوچا ڈیم کی طرف آنے والا نالا بھی بھر گیا. شاہپور، راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والا پل زیر آب آ گیا. نالا لئی میں پانی کی سطح 23 فٹ ہو گئی. کٹاریاں اور گوال منڈی میں لوگوں کو انخلا کی وارننگ. ضلع انتظامیہ سمیت 111 بریگیڈ کا دستہ بھی نالا لئی پہنچ گیا. راولپنڈی میں منہ زور ریلے آبادیوں میں داخل. گاڑیاں بہا لے گئے، درختوں کو اکھاڑ پھینکا. ضلع بھر میں ایک دن کی تعطیل کا اعلان. اسلام آباد میں کئی مکانوں کی بیسمنٹ پانی سے بھر گئیں. بری امام کے مزار کے اطراف میں لینڈ سلائیڈنگ سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. چکری روڈ پر سیلاب میں پھنسے خاندان کو پاک فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا. 18 گھنٹے سے جاری بارش کا سلسلہ تھما تو شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. ایم ڈی واسا کے مطابق بارش رکنے کے بعد نالا لئی میں پانی کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی. پنجاب میں حالیہ بارشوں نے تباہی پھیر دی ہے. چکوال میں کلاؤڈ برسٹ ہوا، ندی نالے بھر گئے، 2 ڈیمز ٹوٹ گئے. سیلابی پانی قریبی آبادی میں داخل ہو گیا. بستیاں زیر آب آ گئیں. جہلم، پاک پتن، منڈی بہاؤدین، اوکاڑا میں بھی بارشوں سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. پاک فوج اور ضلعی انتظامیہ نے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے سینکڑوں جانیں بچائیں. کلاؤڈ برسٹ سے چکوال میں تباہی. 424 ملی میٹر بارش ریکارڈ. درجنوں دیہات زیر آب، نظام زندگی مفلوج. مونسون کے حالیہ اسپیل نے چکوال کا برا حال کر دیا. مختلف حادثات میں متعدد افراد جاں بحق. ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. 2 ڈیم بھی ٹوٹ گئے. جہلم کے نالا گھام میں طغیانی کے باعث پانی آبادی میں داخل. 1 پولیس اہلکار اور شہری پانی میں بہ گئے. تھانہ چوٹالہ کے SHO سمیت 6 اہلکار پانی میں پھنس گئے. ریسکیو ٹیموں نے اہلکاروں کی جان بچائی. پاک فوج کے جوانوں کی کشتیوں اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے امدادی کارروائیاں جاری. مختلف علاقوں میں پھنسے 100 سے زائد افراد کو بچا لیا گیا. منڈی بہاؤدین کے داراپور گاؤں میں خصوصی ریسکیو ٹیموں نے لوگوں کو بچایا. اوکاڑا میں قصبہ لئی چوچک کی حدود میں بارش کے باعث کنویں کے اوپر بنی چھت گر گئی. حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی ہو گیا. پاک پتن میں دریا بیاس میں 1 شخص ڈوب گیا. فتح جنگ میں بارش کے باعث کچے مکان کی چھت گر گئی. ملبے کے نیچے دب کر 15 سالہ لڑکا جاں بحق ہو گیا. فتح جنگ میں دوہریا بند بھی ٹوٹ گیا. ملک بھر میں شدید بارش، متاثرہ علاقوں میں ریسکیو سرگرمیاں جاری ہیں. بارشوں کے باعث ندی نالے بھی بھر گئے ہیں. محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 سے 48 گھنٹے بارش جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں نمائندے ملک سعیدوان. جی ملک، آگاہ کیجیے گا. بالکل، ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز بارشیں شروع ہوئیں، لیکن وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی سارا دن وقفے سے بارش جاری رہی. جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 سے 48 گھنٹے کے دوران مزید بارش اور طوفان کی جو ہے پیشن گوئی کی گئی ہے. آج چکری میں ایک جگہ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیلابی نالے میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالا گیا. جبکہ دیگر مقامات پہ کشتیوں اور مختلف ذرائعوں کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ریسکیو حکام جو ہیں وہ الرٹ پر ہیں اور کہیں پہ بھی وقت ضرورت وہ فوری ہنگامی تک پہنچ رہے ہیں. جبکہ اگر ہم بات کریں ملک کے دیگر علاقوں میں آئندہ 24 سے 48 گھنٹے تک جو ہے شدید بارش اور طوفان و بالا کی پیشگوئی کی گئی ہے. اسی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی تیز بارش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ طوفان کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے. وقفے سے سارا دن بارش جاری رہی، جو ابھی تک جاری ہے، اور وقفے کے بعد جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے. بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں. اور اس ٹائم ہم بات کریں اگر موسم کی تو بہت شکریہ ملک سعیدوان، آگاہ کر رہے تھے. مانسون بارشوں سے پنجاب بھر میں تباہ کاریاں. 24 گھنٹوں کے دوران مختلف حادثات میں 54 افراد جان سے گئے، جن میں 22 بچے بھی شامل ہیں. NDMA نے اموات کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں.
पंजाब में बारिश से हर तरफ तबाही के आसार। मानसून स्पेल ने बुरा हाल करके रख दिया। 24 घंटे में पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 54 अफराद जान से गए। जान गंवाने वालों में 22 बच्चे भी शामिल हैं। बारिशों से 227 अफराद जख्मी भी हुए। NDMA ने अम्बात के ताज़ा दादोशुमार जारी कर दिए। चकवाल में 2 अफराद जान से गए। ओकाड़ा में छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी हो गया। पाकपतन में दरिया ब्यास में 1 शख्स डूब गया। फतेह जंग में मकान की छत गिरने से लड़का जाँ बहक हो गया। रावलपिंडी में शदीद बारिश, सूरत हाल बहुत हद तक कंट्रोल में आ गई है। मरी रोड, राजा बाजार और मुलाका सड़कों से पानी निकाल दिया गया है। नाला लई में पानी की सतह कम होकर 21 फीट से 5 फीट तक आ गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कामयाब रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर इंतजामिया, रेस्क्यूदारों और पाक फौज को शाबाश दी। मशीनरी के जरिए निकासी आप का अमल मुकम्मल किया गया। वार्निंग सिस्टम मुतारिक है और इमदादी सरगर्मियाँ 24 घंटे जारी हैं। वज़ीर आला ने अवाम से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। उधर पाक आर्मी का सैलाबी सूरत हाल में मुल्क भर में वसी पैमाने पर फजाई रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। मुतादिद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी। गांव चक्री राजन में 3 अफराद, चकवाल और खानपुर से 27, चकमोंजो से 10, ढोक भदर और दारापुर से 69 अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मकामी इंतजामिया भी भरपूर हिस्सा ले रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA ने बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और मुमकिन खतरात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस, कहा कि पंजाब में शदीद बारिशें हुई हैं। क्लाउड बर्स्ट से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। अच्छी तैयारी के बायस कम नुकसानात हुआ। आइंदा के सभी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम करेंगे। चंद हफ्तों में मेरा ये दूसरा NDMA का दौरा है। मैं समझता हूँ कि इस मरतबा फिर जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं बड़े हालिया दिनों में पंजाब में जो बेपनाह बारिशें हुई, उसका मैं समझता हूँ कि मुकाबला पंजाब हुकूमत ने और इसी तरीके से दूसरे सूबों ने बड़ी अच्छी तैयारी के साथ किया है और जिसका नतीजा ये है कि नुकसानात कम हुए। बदकिस्मती से पाकिस्तान NDMA एंड प्रोविंसेस आइंदा आने वाले सालों में ये जो क्लाउड बर्स्ट जो हैं ये इसमें ज़्यादा शिद्दत आएगी, इंटेंसिटी आएगी, तो उसी तरीके से हमें अभी से आइंदा के लिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। सिविल लाइन्स, ठंडी सड़क, ऑटोबान रोड, पंपिंग स्टेशन और रेलवे अंडरपास का जायजा लिया। स्टेशन के इर्द गिर्द तमाम रोड से पानी की निकासी और सफाई का काम तेज करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बारिश को रोक तो नहीं सकते लेकिन इकदाम कर सकते हैं। ये कहना कि बारिश हो और कहीं पानी खड़ा ना हो, ऐसा ख्याली प्लाव हम नहीं बना सकते। मैंने तकरीबन पूरा शहर देखा है, वो इलाके भी देखे जहाँ पे अभी तक पानी है कोताहियां, अभी तक पानी है। कुछ इलाकों में इस वक्त लतीफाबाद में पानी ना होने के बराबर है। हम फिर रेलवे कॉलोनी, मखीशा रोड, रेलवे स्टेशन, इन सब इलाकों में गए। कहीं कहीं थोड़ा सा पानी था सड़कों पे, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। बरसात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, बरसात के बाद जो पानी की निकाली है उसको जल्द से जल्द किया जाए। इंतजामिया अपना काम कर रही है, इसलिए बारिश को तो रोक नहीं सकते। वो यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कोशिश करें कि पानी निकले। ये कहना कि बारिश हो और पानी कहीं खड़ा ना हो, मेरा ख्याल है ये ख्याली पुलाव तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान में मानसून के शदीद स्पेल, मौसम का हाल बताने वालों ने बारिशों के नए स्पेल की तस्दीक कर दी है। सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ने बोर्ड को बताया कि इस बार मुल्क में 80% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। सिंध और पंजाब में मजीद मुसलधार बारिश मुतवक्के है। कराची में मुसलधार बारिश का इम्कान नहीं। हफ्ते या इतवार को शहर में हल्की बारिश मुतवक्के है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, महकमे मौसमियात ने जब एंड और स्टार्ट में मौसम की पेशन गोई इशू की थी, तो उसमें ये बात बता दी गई थी कि मुल्क के अक्सर इलाकों में जो बारिशें हैं वो मामूल से ज़्यादा रहेंगी। अब हम बात करते हैं कि पंजाब में जो ये मानसून का इवेंट हुआ है, इसमें काफ़ी शदीद बारिशें हुई और जो ये सिलसिला जो है आज रात गए तक जारी रहेगा। अब इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो वस्ती और जनूबी पंजाब की जानिब होगा, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है सिंध की जानिब मुंतकिल होना शुरू हो जाएगा। बलूचिस्तान के जो मशरकी इलाके हैं वो मानसून की वेस्टर्न लिमिट है, इससे आगे मानसून नहीं जाता है। तो बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में जो बारिश होती है वो मगरिबी हवाओं के सिलसिले की वजह से होती है, ना कि मानसून की वजह से। ये जो मानसून का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर कर रहा था, ये आहिस्ता आहिस्ता
جنوب کی جانب یعنی کہ سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے. اس کے تحت آنے والے کل کے روز سے جو ہے سندھ کے بالائی اور مشرقی علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے، جس میں جو ایسٹرن اور ساؤتھ ایسٹرن اضلاع ہیں جس میں عمر کوٹ، میرپور خاص اور تھرپارکر ریجن ہے، یہاں پر ایک اچھی بارش یعنی کہ موسلا دھار بارش بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں ہفتے کے روز جو ہے وہ درمیانی سے ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش کی امید ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ 19 اور 20 تک برقرار رہے. پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشیں، دریا بپھرنے لگے. دریا جہلم میں آئندہ 24 گھنٹوں میں منگلا کے مقام پر نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے. جہلم، راولپنڈی، اٹک، گجرات، سرگودا، خوشاب، جھنگ، راولپنڈی، گجراوالا، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور فیصل آباد میں حفاظتی اقدامات کی ہدایت. دریاؤں کے قریب موجود آبادیوں کا انخلاء یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے گئے. 21 جولائی سے پنجاب کے مشرقی دریاؤں میں سیلابی صورتحال بن سکتی ہے. پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا ہے. راول ڈیم میں پانی کی سطح 1752 فٹ پر پہنچ گئی ہے. شاہپور ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے. پنجاب بھر میں بارشوں کے باعث 45 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ ہے. ڈیمز، دریاؤں، نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں نہانے پر پابندی عائد ہے. شہر قائد میں عمارت اور مکان کی چھتیں گرنے کے 2 واقعات. لیاری میں عمارت کی چھت گرنے سے 2 خواتین جان سے گئی. عمارت کے چھٹے فلور پر مرمتی کام جاری تھا. محمود آباد میں مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے. تفصیلات سعد شریف کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. کراچی میں خستہ حال عمارتیں اور مکانات حادثات کا سبب. چھتیں اور ملبہ گرنے کے واقعات تھم نہ سکے. لیاری کھڈا مارکیٹ میں رہائشی عمارت کی چھت گر گئی. افسوسناک حادثے میں 2 خواتین جان سے چلی گئیں. حادثے میں خاتون اور 2 بچیاں زخمی بھی ہوئیں. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے جائے حادثہ کا دورہ کیا. کہا کہ چاہتے ہیں شفافیت برقرار رہے. قانون میں اہم ترامیم لا رہے ہیں. یہی ابھی تک کی جو انیشل رپورٹ آئی ہے، جو معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ ریپیئر کا کام اوپر کو انہوں نے شروع کیا تھا اور اس کام کے دوران شاید وزن پڑنے سے وہ جو چھت گری اور اس کے نتیجے میں 2 خواتین جو ہیں ہلاک ہوئی ہیں اور 3 زخمی بھی ہیں. بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ اس میں کوئی بددیانتی شامل نہ ہو اور جو بھی کام وہ ٹرانسپیرنٹ ہو. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی واقعے کا نوٹس لے لیا. رپورٹ کے مطابق لیاری میں اس وقت 107 مخدوش عمارتیں ہیں. 14 انتہائی خطرناک عمارتوں میں سے 9 کو خالی کرا لیا گیا ہے. ادھر محمود آباد میں بھی مکان کی چھت گر گئی. حادثے میں 3 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا. ادھر قلات میں شیخ حاجی کے مقام پر 2 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے. پولیس کے مطابق نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے دونوں کو قتل کر دیا. مقتولین کی شناخت سجاد احمد اور مزار خان کے ناموں سے ہوئی ہے. لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. تاہم ملزمان کی تلاش جاری ہے. کراچی کے علاقے سعید آباد سے 4 سالہ بچے کی بازیابی کے کیس میں گرفتار جعلی پی ڈی نے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے سامنے حیران کن دعوے کر دیے. تفتیش کے دوران پی ڈی نے کہا کہ 2 جنات سے بات کر کے لاپتہ بچوں کو تلاش کرتی ہے. اس کیس میں بھی ملزمہ نے اغوا شدہ بچے کے والدین سے تلاش کے لیے پیسے لیے. بول نیوز پر دیے گئے بیان میں پی ڈی نے دعویٰ کیا کہ وقت پر دربار میں جنات سے رابطہ ہوتا ہے. اس نے اعتراف کیا کہ وہ قرآن نہیں پڑھتی اور پیسے زبردستی نہیں لیتی، لوگ خود دیتے ہیں. جنات خیرات مانگتے ہیں اور اس نے دعویٰ کیا کہ بچے کو اس نے ڈھونڈا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ایئر انڈیا کے طیارے کی تباہی میں مودی سرکار کی غفلت اور انتظامی خرابی پر سوال اٹھ گئے. ایئر انڈیا طیارے کی تباہی کا ذمہ دار کپتان نکلا. برطانوی اخبار ٹیلی گراف اور امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے پول پٹی کھول کر رکھ دی ہے. مودی نے تحقیقاتی رپورٹ کو دبانے کی کوشش کی لیکن مغربی میڈیا نے بھانڈا پھوڑ دیا. ایئر انڈیا حادثات طیارے کی تباہی کا ذمہ دار مبینہ طور پر جہاز کا کپتان نکلا. ذہنی مسائل کے شکار پائلٹ کو فلائٹ کلیئرنس دینے پر سنگین سوالات اٹھ گئے. مودی سرکار اور ایئر انڈیا نے اس رپورٹ کو شائع ہونے سے روکا مگر ٹیلی گراف اور نیو یارک پوسٹ سچ سامنے لے آئے. ٹیلی گراف کے مطابق پائلٹ سمیت سبھروال کئی برسوں سے ذہنی دباؤ جیسے مسائل کا سامنا کر رہے تھے اور انہوں نے بارہا طبی رخصت لی. ذہنی صحت کے مسائل کے باعث پروازوں سے طویل وقفے کے باوجود ایئر انڈیا نے انہیں دوبارہ پرواز کی اجازت دی جبکہ پائلٹ والد کے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی ریٹائرمنٹ پر غور کر رہے تھے. ادھر نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں ایندھن بند کرنے والے بٹن کو دبانے کو مرکزی سبب قرار دیا گیا. انڈین کمرشل پائلٹس ایسوسی ایشن نے دعویٰ کیا کہ پائلٹ کی ذاتی کیفیت کو ایئر انڈیا نے نظر انداز کیا. 12 جون کو احمد آباد میں ایئر انڈیا کے اس حادثے میں 270 افراد ہلاک ہو گئے تھے.
ज़राई ज़मीन और पानी के मामले पर मुखालफिन ने 6 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मकतूलीन में 2 सगे भाइयों के 3 बच्चे शामिल हैं। वाक़या नवाब शाह के 20 सेक्शन थाना के हदूद के एरिया मोरी में पेश आया। एक ही घर में 6 लाशें पहुँचने पर कोहराम मच गया। नवाब शाह थाना 20 सेक्शन की हदूद के एरिया मोरी के मकाम पर मुसल्लह अफराद ने घात लगाकर फायरिंग करके मुखालफिन के 6 नौजवानों को कत्ल कर दिया, जिसके नतीजे में गांव मूसा भंगवार के रिहायशी गुलाम मुस्तफा भंगवार के 3 बेटे शहबाज भंगवार, हुबदार भंगवार और रजब भंगवार कत्ल हो गए। दूसरे भाई शाली भंगवार के 3 बेटे फरमान, यार मोहम्मद कुर्बान भंगवार मकतूलीन में शामिल हैं। ये इनका आपस में कोई मसला था बहुत पुराना, तकरीबन 15 से 20 साल पहले। तो उसमें पहले एक दौर के जो है ना 3 अफराद कत्ल हो चुके हैं और आज उनका बदला लिया गया है, जिसमें 6 नौजवान जो हैं कत्ल किए गए हैं। मकतूलीन गांव से पेशी के लिए कोर्ट जा रहे थे। मुखालफिन ने घात लगाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मुखालफिन में 2009 में ज़राई पानी के तनाज़े पर झगड़ा हुआ था, जिसके नतीजे में 2 अफराद कत्ल हुए थे। देरीना दुश्मनी में अब तक 8 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। SSP शहीद बेनज़ीर आबाद शब्बीर अहमद सेठार के मुताबिक पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के घर भी मिसमार किए जा रहे हैं। गिरफ्तारियों के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को अंदाजे से दस्तबरदार खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियती नशस्त जमीयत उलमा इस्लाम को मिल गई है। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और दोनों पार्टियों की मुशावरत से किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा अमीर मकाम का कहना था कि नून लीग अपोजिशन की बड़ी जमात होते हुए बिला मुकाबला इंतखाबात के लिए कुर्बानी दे रही है ताकि खैबर पख्तूनख्वा में खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम ख़त्म हो जाए। बोले कि गेंद अब हुकूमती पार्टी के कोर्स में है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात तो ज़रूर होंगे, मगर दिलचस्प बात यह है कि कोई किसी के खिलाफ मैदान में नहीं होगा। सियासी जमातों ने बाहमी मुशावरत से ऐसा फॉर्मूला सेट कर लिया है कि जोड़ नहीं, अब सिर्फ जोर चलेगा। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला कामयाब कराने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। ज़राए बताते हैं कि अगर ये फार्मूला चल गया तो 6 नशस्तें हुकूमत को और 5 अपोजिशन को मिल सकती हैं। बसूरत दीगर इंतखाबी मंजरनामा तब्दील हो सकता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की काबुल में अफ़गान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की रफ्तार बरकरार रखने पर जोर, तजारत, ट्रांसलेट और सिक्योरिटी में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। फ़रक़ीन ने इलाक़ाई इक़्तिसादी तरक्की की मुकम्मल सलाहियत के उसूल पर इत्तफ़ाक़ किया। इलाक़ाई राब्तों के मंसूबों पर अमल दरामद के अज़म का अयादा भी किया गया। कोहिस्तान सरकारी अकाउंट करप्शन स्कैंडल पर नैब खैबर पख्तूनख्वा का आज़म स्वाति के जवाब पर अदम इत्मीनान। नैब ने आज़म स्वाति को 17 जुलाई को तलब कर लिया। नैब कोहिस्तान स्कैंडल में 36 अरब रुपए से ज़ायद करप्शन की तहकीकात कर रहा है। नैब खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी अमजद अली को भी नोटिस। नैब ने मुआविन खुसूसी से असासजात तफसीलात तलब कर ली हैं। दफ्तर ख़ारजा ने अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे पाकिस्तान की खबरों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतवक्के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक खबरों पर लाइल्मी का इजहार कर दिया और खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान का कहना था कि उनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि अमरीकी सदर पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत पाकिस्तान को इस सिलसिले में किसी किस्म की इत्तला या शेड्यूल मौसूल नहीं हुआ। दूसरी जानिब खबर एजेंसी का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। आज का दिन तलबा और तालिबात की ज़िंदगी का यादगार लम्हा है। वो बन सकता है जैसा वो बनना चाहे। नौजवान कभी मायूस ना हो। कि आज का दिन हमेशा की तरह, यानी अगर आपने जिंदगी के 14 साल या 16 साल यहाँ पहुँचने तक जो गुजारे हैं, तो आज भी आप देख सकते हैं कि आपके माँ बाप आपके पीछे ही खड़े हैं। बचपन से लेकर आपकी इस जगह तक पहुँचने तक जारी और सारी है। मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, जो हासिल करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, उसको फोकस करो और उसके पीछे दौड़ते रहो कि जैसा तसव्वुर करोगे, जैसा चाहोगे, खुदा तुम्हें वो देगा। और मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, कभी मायूस नहीं होना। इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमीशन के कायम मकाम हाई कमिश्नर और डायरेक्टर बराए तरक्की ने वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की है। मुलाकात में सेहत और आबादी के शो में बरतानवी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान को दरपेश सेहत के चैलेंजेस, साउदा पानी, बढ़ती आबादी और सेवरेज मसाइल की निशानदही की। उनका कहना था कि इलाज से ज़्यादा तवज्जो एहतियाती इक़दामात पर दी जा रही है और प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत बनाया जा रहा है। बरतानवी हाई कमीशन ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए ताउन जारी रखने का अयादा किया। और जदीद रेडार और BVR मिसाइलों से लेस JF-17 ब्लॉक 3 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारे रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू में शिरकत के लिए
रॉयल एयरफोर्स बेस फेयरफोर्ट पहुंच गए। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद बरतानिया में पाक फजाइया के तैयारों की आमद का शिद्दत से इंतजार था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। बरतानवी शहरियों का इंतजार खत्म हो गया। पाक फजाइया का दस्ता बरतानिया में रॉयल एयरफोर्स बेस फेयरफोर्ट पहुंच गया। पाक फजाइया के जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 तैयारे रियाद 2025 में शिरकत करेंगे। शो में शिरकत के लिए पाक फजाइया के JF-17 थंडर ने दौरान परवाज कामयाब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की। पाक फजाइया ने एलिवेशन 78 टैंकर तैयारे की मदद से तवील फासले तक ऑपरेशन का भी मुजाहरा किया। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद बरतानिया में पाक फजाइया के तैयारों की आमद का शिद्दत से इंतजार था। रॉयल इंटरनेशनल 882 दुनिया का सबसे बड़ा फौजी एयर शो है। ईरान के लिए जासूसी का इल्जाम। इसराइली हुकाम ने एक फौजी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इसराइल की दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक फौजी पैसों के एवज हसास मालूमात फराहम कर रहा था। आपको अपडेट करें, फौजी ने हालिया जंग के दौरान ईरानी रॉकेट हमलों और इसराइली मिसाइल इंटरसेप्शन की वीडियोस ईरान को भेजी। इसराइली श्रेणियों को ईरान के लिए जासूसी से रोकने के लिए इश्तिहारी मुहिम भी शुरू कर दी। रेडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलाए जाने वाले इश्तिहार में भी खबरदार किया कि जासूसी पर 15 साल कैद तक की सजा हो सकती है। उधर इसराइल ने गजा में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। 24 घंटों में सहूनी फौज के हमलों में मजीद 90 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इमदादी मरकज पर हमले किए। जुनूनी इसराइल ने मसाजिद के बाद ईसाइयों की इबादत गाहों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च पर हमला, 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइल ने शाम की दारुल-हुकूमत दमिश्क पर बड़ा हमला कर दिया है। सदाती महल और वजारत दिफा की इमारत पर बमबारी की है, जिससे एक शख्स हलाक और 18 जख्मी हो गए हैं। शामी टीवी की एक मेज़बान अचानक पनाह लेने पर मजबूर हो गई। तुर्किया ने शामी दारुल-हुकूमत दमिश्क पर इसराइल के फिजाई हमलों की शदीद मजम्मत की है। गजा, लबनान और ईरान के बाद अब शाम पर इसराइली हमले खत्ते में नई जंग छेड़ सकते हैं। एक जानिब इसराइल मुसलसल तीसरे रोज शाम पर हमला कर रहा है और दूसरी जानिब जुनूबी शहर अल सुवायदा में 2 रोज़ा जंगजू और सरकारी फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी हैं। सदर अहमद अल शाया ने शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल शाम में अदम इस्तेकाम और नफरत पैदा करना चाहता है। और बात करेंगे, वज़ीर आज़म ने चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी। कमेटी 30 रोज के अंदर वज़ीर आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी को पाकिस्तान के शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने के लिए आला सतह की कमेटी कायम। वज़ीर आज़म की कमेटी अरकान को काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत। कमेटी पाकिस्तान के शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगी। वज़ीर तवानाई कमेटी के चेयरमैन जबकि वज़ारत सनअत और पैदावार के सेक्रेटरी कमेटी के कन्वीनर होंगे। अजनास के ज़खायर, दस्तखत, कीमत से मुताल्लिक़ डाटा की दुरुस्तगी, किसानों के मफादात, सार्फिन के हुकूक, मकामी ज़रूरत और तिजारती तकाज़ों के तहत पॉलिसी सिफारिशात भी मुरतब की जाएंगी। सार्फिन के लिए कीमतों के उतार चढ़ाव का जायजा भी लिया जाएगा और जरूरी रिकमेंडेशन भी दी जाएंगी। कमेटी निजकारी के अमल को शफाफ और मजबूत बनाने के लिए मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स बशमूल सनतकारों, किसानों और रेगुलेटरी इदारों के साथ मुशावरत करेगी। और अब ये जानिए, कनाडा के शहर ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन और उनकी बीवी और बच्चों को जान से मारने की धमकी देने वाले भारतीय निजात पुरजोत सिंह मानू गिरफ्तार कर लिया गया है। 29 साला मुस्लिम ने पैट्रिक ब्राउन को स्वीडन के सर्वर से ईमेल भेजी थी, जिसमें उन्हें मेयरशिप छोड़ने या जान से मारने की धमकी दी गई थी। ईमेल में मुस्लिम ने खुद को इंटरनेशनल प्रोफेशनल दहशतगर्द करार दिया था। पुलिस ने मुस्लिम को हिरासत में ले लिया है, जिसको अदालत में पेश किया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हमारे नुमाइंदे असमत मुजीब से। जी बताइएगा, इस वजह से क्या डिटेल्स आ रही हैं सामने? जी, ब्रैम्पटन के में पैट्रिक ब्राउन, उनकी बीवी और बेटे को एक ईमेल के थ्रू हाल ही में जान से मारने की धमकी मौसूल हुई थी। पुलिस ने उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन में रखा हुआ था। फौरी कार्रवाई करते हुए एक भारतीय निजात 29 साला शख्स कमरजोत सिंह को गिरफ्तार किया है। उससे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बरामद कर लिए हैं और ये मालूम हुआ है कि ये ईमेल उसने एक स्वीडन के सर्वर से भेजी है और उस ईमेल में उसने लिखा था कि पैट्रिक ब्राउन अपना मेयर का ओहदा छोड़ दें, वरना उन्हें, उनकी बीवी और उनके बेटे को जान से मार दिया जाएगा। उसमें उसने ये भी लिखा था कि उसका ताल्लुक एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल ग्रुप से है। या वादे रहे कि पैट्रिक ब्राउन हाल ही में भारत में कायम बदनाम जमाना लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए वफाकी हुकूमत से मुतालबा कर चुके हैं, जिसके बारे में पुलिस को शुबा है कि वो रीजन ऑफ पील में भर्ताखोरी, टारगेट किलिंग जैसे जराइम में मुलविस है। ये भी शुबा जाहिर किया जा रहा है कि आया इस शख्स का ताल्लुक भी उसी दहशतगर्द तंजीम से है या नहीं, लेकिन पुलिस ने अभी इसकी वजाहत नहीं की है। मेयर ब्राउन ने कहा है कि ये एक बैनुल अक़वामी जराइम पेशा नेटवर्क है जो भारत से चलाया जा रहा है। जी
असमत मुजीब आगा कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, लग्जरी गाड़ियां, सोना, अरबों की जायदादें, कोहिस्तान करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब की तहलका खेस कार्रवाई, अरबों रुपए के असासे बरामद, लग्जरी गाड़ियां, सोना और नकदी जब्त कर ली गई है। आपको ये बताएं कि नैब ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तहकीकात में तब्दील कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया है। दौरान तफ्तीश आजम स्वाति समेत दीगर 62 अफराद से डील्स का इंकशाफ हुआ है। कार्रवाई के दौरान 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए गए 1 अरब रुपए से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम सोना बरामद कर लिया गया है। 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद हुए, जिनमें से 5 अरब रुपए की रकम बरामद की गई। बरामद शुदा 77 लग्जरी गाड़ियों की मालियत 94 करोड़ रुपए है। 30 घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 दुकानें और 4 फार्म हाउसेस भी नैब ने कब्जे में ले लिए हैं। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि 3 मैचेस की T20 सीरीज पाकिस्तान टीम बांग्लादेशी दारुलहुकूमत ढाका पहुंच गई है। एक दिन आराम के बाद ग्रीन शर्ट्स आज से तैयारियों का आगाज करेंगे। शेर बंगला स्टेडियम में होने वाली तरबियती मैच में स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी शिरकत करेंगे। इसके अलावा फील्डिंग ड्रिल्स और फिटनेस का अलहदा से सेशन होगा। ग्रीन शर्ट्स जुम्मे और हफ्ते को ट्रेनिंग के बाद इतवार को पहले मार्के में मेजबान टीम बंगाल टाइगर से टकराएंगे। 3 मैचेस की सीरीज के बकाया मैचेस 22 और 24 जुलाई को होंगे। और पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज का फैसला नहीं हो सका। पीसीबी ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को 3 वनडे मैचेस को T20 सीरीज में तब्दील करने की तजवीज़ दी थी। इसी हवाले से की गई ईमेल का वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अब तक जवाब नहीं दिया। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है कि क्रिकेट वेस्ट इंडीज और पीसीबी के दरमियान आईसीसी इजलास की साइडलाइन पर भी मुलाकात में मजीद मुशावरत की जाएगी। वेबसाइट का कहना है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक वनडे सीरीज खेलना चाहता है। सिंगापुर में आईसीसी सालाना कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। इब्तिदाई सेशन में आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतखाब किया गया है और इंतखाबी अमल में 40 एसोसिएट मेंबरान और 5 रीजनल नुमाइंदगान ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस के इब्तिदाई सेशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद ने की। 19 और 20 जुलाई को शेड्यूल बोर्ड सरबराहान मीटिंग में चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी की शिरकत मुतवक्किल है। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का मेला जर्मनी में सज गया। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी दस्ते ने भी रिवायती लिबास में शिरकत की। मिनी ओलंपिक्स में 24 एथलीट्स के साथ 12 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशल्स भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तानी एथलीट्स 6 इवेंट्स एथलेटिक्स, जूडो, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, स्विमिंग और आर्चरी में हिस्सा लेंगे। IBSF वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान के हसनैन अख्तर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में हसनैन का मुकाबला आज वेल्स के रॉयली पावर से होगा। सेमीफाइनल में हसनैन अख्तर ने पोलैंड के ओलिवर को शिकस्त दी। पोलिश प्लेयर पाकिस्तानी खिलाड़ी के खिलाफ एक फ्रेम भी ना जीत सके। 7 फ्रेम्स के मुकाबले में पहले 4 फ्रेम जीतकर हसनैन फातिर है। हसनैन IBSF वर्ल्ड अंडर 17 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाले पहले पाकिस्तानी प्लेयर हैं। वो इस वक्त एशियन अंडर 21 चैंपियन भी हैं। और पहली बार विंबलडन टेनिस इवेंट जीतने की खुशी चैंपियंस डिनर में जैंग सिनर और एगा श्वातिक के रोमानवी रक्स की वीडियो वायरल हो गई। इस मौके पर मेंस सिंगल्स के उतालवी फातेह सिनर ब्लैक टाई सूट में जलवागर हुए। खवातीन इवेंट की मलिका ईगा ने जामनी रंग का दिलकश लिबास ज़ेबतन किया। पाकिस्तान से हसरत और जलन में मुब्तला भारत को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। भारतीय मीडिया के दावे और BCCI के इरादे खाक पे मिल गए हैं। आईसीसी के सिंगापुर में होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है, जिसमें दूर दूर तक एशियन क्रिकेट काउंसिल की बांग्लादेश में होने वाली मीटिंग से मुतालिक किसी किस्म का कोई इशारा भी नहीं दिया गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि आईसीसी अरकान मीटिंग में AICC के इजलास से मुतालिक हतमी फैसला जारी करेंगे। और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर खजालत का सामना करना पड़ा। इंसानियत के दुश्मन और गुजरात के कसाई को परिंदे ने भी लिफ्ट नहीं कराई। गैर मुल्की दौरे के दौरान कलाई पर तोता बिठाने की मोदी की शब्दागिरी धरी की धरी रह गई। और इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।